कैसे हो दोस्तों? All is well. Friends, we are discussing about, that very well, one of the supreme topic. It is error. Chapter number 2, units and dimensions. In part number 11, we have started, we can say that topic error. In 12, we have discussed one of the supreme point of error, combination of error. And today, we'll move in forward direction one step ahead. But you know that part 12 was very IMP. Similarly, part 13 also will be very interesting, and the supreme for JEE NEET. So friends, be alert, we can say that concentrated and analyze this lecture very we can say that carefully and perfectly. So what is the homework? जो आज के लेक्चर में चलता है, जितने क्वेश्चंस होते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस you have to perform at your home, we can say that on a notebook. So friends, without wasting time, we'll move in forward direction. Units and dimensions part 13. So we'll start the next topic, but before moving towards the next topic, first of all I would like to clear the homework related numerical. In the last lecture, you know that very well, I gave this question. Initial temperature 40.6, 0.2 degrees Celsius. And final temperature T2 78.9 plus or minus 0.3 degrees Celsius. So what's your target? Your target to find the calculate the rise in temperature of a body. So here two different temperatures, initial temperature, final temperature. What's your target? Your target to find the rise in temperature. So check it, the initial temperature, it is 40.6. What is the final temperature? 78.9. Obviously the value of temperature increases. So how can you find rise in temperature of a body? So we write here rise in temperature of a body. It is simply, you can see that final temperature minus initial temperature. बड़ा टेम्परेचर में से छोटा टेम्परेचर सब्ट्रैक्ट करो बिंदास. So what is the final temperature? Final temperature 78.9 plus or minus 0.3. Then minus 40.6, initial temperature 40.6 plus or minus 0.2. You can see. Now what we have to do? Just check it. Now we would like to think about subtraction. तो pure quantity में से pure quantity subtract करने की. So 78.9 minus 40.6 करो. Your answer we can say that 37. I think 7 degrees Celsius. 78.9 minus 40.6, 70. Sorry, 9 minus 6, 3. And here 38.3. You can see. And plus or minus, इसका अपन लोग जानते हैं एडिशन नहीं होगा, सॉरी सब्ट्रैक्शन नहीं होगा. एरर रिलेटेड पॉइंट याद करो. व्हाट इज द एरर इन T1? इट इज डेल्टा T1. एरर इन T2 डेल्टा T2. So what is the change in, or what is the absolute error in temperature? It is delta T1 plus delta T2. You know that very well. So here this is your delta T1, this is your delta T2. So 0.3 plus 0.2. So 38.3 plus or minus 0.5 degrees Celsius. This is the rise in temperature. अगर ये क्वेश्चन में पूछते what is the error in final temperature or rise in temperature, then this is your answer 0.5. तो देखो चिकना कैसे, कोई बोले कैसे चिकना इसलिए देखो प्योर क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन किया, मगर जो एरर है, एरर मैंने कितनी बार बोला, एरर वर्ड आए आपको अनिल कपूर को याद रखना है बी पॉजिटिव. एरर डिपार्टमेंट में कभी नेगेटिव साइन सोचने की नहीं, यानी एरर 0.3, एरर 0.2, उसका समेशन ही होता है. एरर ऑलवेज गेट एडेड. 0.3 plus 0.2 that means 0.5. So सुप्रीम ये मैंने इसलिए रखा था कि आपको पता चले because of this word rising temperature of body. So this is the rising temperature of body with error. So friends, now we think about one more. मगर नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना बहुत ही जानदार शानदार टॉपिक है. So last time we discussed combination of errors in terms of addition and in terms of subtraction, after that multiplication and division. तो मैं एक कदम आगे बढ़ूं उससे पहले मैं वो वापस लेक्चर नंबर 12 का जो पंच लाइन है अपना वो डिस्कस करते हैं वापस.
You know that very well. When two physical quantities are added, either added or subtracted, then what happens? Two physical quantities are either added or subtracted, then you know that very well. The absolute error in final result, is simply the sum of absolute errors in individual quantity. ए और बी था, उसमें जो एरर था उसका एडिशन करते थे तो उसका डायरेक्ट एडिशन. इसी तरह when two quantities are multiplied and divided, then fractional error in final result is the sum of fractional error of individual quantities. So addition, subtraction, who is the hero? Absolute error. And what is the, we can say that hero for, or who is the hero for multiplication and division? Obviously, you know that very well, fractional error. For example, कुछ लोगों के फंडे वापस, this one is the physical quantity A. इसका absolute error क्या होगा? What is the absolute error in A? It is delta A, you can see. And what is the fractional or relative error in A? तो ये एक absolute error है. What is the fractional error? So fractional error यानी delta A by A. So addition subtraction के लिए ये हीरो है, multiplication division के लिए अपन लोग जानते हैं fractional error. आज इसके रिलेटेड धूम मचने वाली है. So be alert. अगर अपन लोग एक कदम पहले आगे बढ़ते हैं, आज पहले मैं एक टॉपिक कवर करवाने के बाद प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं दोस्तों. अब अपन लोग तीसरा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं. थर्ड पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन सब्ट्रैक्शन, एरर for sum or subtraction or difference, then error for multiplication and division. Now today in lecture number 13, part number 13, I would like to think about error in we can say that quantity, error in quantity raised to power. एरर इन क्वांटिटी रेज टू पावर, पावर रिलेटेड एरर. कोई बोले क्या बोल रहे? फॉर एग्जांपल देयर इज वन क्वांटिटी z, इट इज z इज इक्वल टू a रेज टू 4. सपोज 4 की जगह मैं कर देता हूं n. सो व्हाट इज द पावर ऑफ दिस क्वांटिटी a? पावर ऑलरेडी n. अगर z a के साथ इस तरह एसोसिएटेड, देखो z का टाका a के साथ भिड़ा हुआ है मगर पावर के फॉर्म में. आगे के दोनों के केसेस देखो, Z A और B के साथ कनेक्टेड था by using addition or subtraction, और Z is associated with A and B either in terms of multiplication or division. तो हमने देखा अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन होता था और A और B में एरर हो तो Z की एरर कैसे फाइंड करते थे. फिर A और B के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो और डिवीजन हो तो Z में कैसे एरर फाइंड करते. आज अपन लोग डिस्कस करेंगे अगर Z का टाका A के साथ भिड़ा हो और A के ऊपर कुछ पावर हो तो z का एरर कैसे फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन यूज दिस कंसेप्ट. यू कैन सी हियर फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ n सपोज पावर 2. चलो थोड़ी देर के लिए ये मैं nth के लिए डिराइव करूंगा, डोंट वरी. सो इसका मतलब ऐसा होगा a into a. जाहिर सी बात है a स्क्वायर दैट मींस a into a. तो अब a और a के बीच में कौन सा टाका मिला है? मल्टीप्लिकेशन. सो व्हाट इज द एरर इन z फॉर मल्टीप्लिकेशन? फ्रैक्शनल एरर. अगर a में एरर हो तो z में एरर आएगी कैसे? डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा a बाई a. याद करो, दिस इज योर फर्स्ट क्वांटिटी, दिस इज योर सेकंड क्वांटिटी. व्हाट हैपन बिटवीन दिस टू क्वांटिटीज? मल्टीप्लिकेशन. व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड, then error in final result, z is the final result, error in final result is equal to sum of fractional error in individual quantity. तो a का fractional error डेल्टा a by दूसरा है उसका error डेल्टा a by और उसका समेशन. देखा, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, सब्ट्रैक्शन हो, एक कज बंदा धूम मचाएगा. एडिशन. सो हियर एडिशन you can see most time पे. So we'll move towards the next point. Delta z by z. How many times? 2 times. 2 times of delta a by a. So this is your answer. So if you represent the same equation
So therefore for n powers, अगर पावर n रखे तो क्या होगा इंस्टेड ऑफ 2, so I can write a raised to n. So what is the error in z? अगर a में एरर हो तो z में एरर कितना होगा डेल्टा z by z, पावर जो है उसको आगे रखो डेल्टा a by a, here n 2 you can see, so n की जगह हमने 2 कर दिया था। देखो तो आज से जब भी पावर के साथ डील करो तो पावर सिंपली आगे आ जाएगा एंड देन फ्रैक्शनल एरर। सुपर। फॉर एग्जांपल ये चेक करना है बराबर, फॉर एग्जांपल x is equal to a raised to m and b raised to n। चलो अगर a में एरर हो, मैं कैपिटल कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा मजा आए, a and capital B। what is the power of a? small m। what is the power of b? small m। अब a में एरर हो, b में एरर हो तो x में एरर कैसे काउंट करेंगे? सो देखो x का एरर फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा x बाय x। कोई बोले आपको कैसे पता चलेगा? वेरी इजी। हियर व्हाट हैपन बिटवीन a and b? ऑब्वियसली दे बोथ आर एसोसिएटेड बाय मैथमेटिकल प्रोसेस लाइक डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन आए, डिवीजन आए बिंदास, और पावर आए बिंदास फ्रैक्शनल एरर में चले जाओ। एब्सोल्यूट एरर में कब जाना है? सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट एरर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड पावर, देन यू हैव टू थिंक अबाउट फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर तो है डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू व्हाट इज द पावर ऑफ a? a का पावर देखो am, तो पावर आगे व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर इन a? डेल्टा a बाय a। काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसते हैं, ये है इजी मगर फिर भी इसमें फिसलते हैं। ये फिसलन वाला केस है, चिकना केस। क्यों? काफी स्टूडेंट ऐसा लिखते फिर डिवाइड बाय a डेल्टा b बाय b, इट इज रॉन्ग। कोई बोले क्यों? आपने बोला पावर आगे फ्रैक्शनल एरर, पावर आगे फ्रैक्शनल एरर। सॉरी, पहला स्टेप आपका सही है, ये डिनोमिनेटर वाला रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला a और b भले डिवाइड हो रहे हो, इसमें डिवाइड हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एक चीज करनी है, यू नो दैट वेरी वेल, एडिशन। सो हियर एग्जैक्ट टर्म, ये पहला टर्म लिखा फिर प्लस, अब पावर n, डिनोमिनेटर के लिए यही होगा डेल्टा b बाय b। सो दिस इज योर आंसर फॉर एरर इन x। सुपर। देखा, भले डिवीजन में हो, मल्टीप्लिकेशन नो प्रॉब्लम, सॉरी एडिशन नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हर एक चीज के लिए आपको यही डिस्कस करना है। सो फ्रेंड्स यू कैन सी वी हैव डिस्कस्ड एरर इन क्वांटिटी रेज्ड टू पावर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड जनरल पॉइंट, देन वी हैव डिस्कस्ड फॉर nth पावर। आज से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के पावर के टर्म्स में हो तो उसका एरर फाइंड करने के लिए क्या करने का? पावर को आगे लाओ और वो क्वांटिटी का फ्रैक्शनल एरर रिप्रेजेंट करो। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूं आपको। क्वेश्चन ऐसा पूछे z is equal to a raised to 4, then find the error in z। so delta z by z, क्योंकि पावर है तो फ्रैक्शनल एरर, पावर को आगे रखो। what is the, we can say that error in a, it is delta a by a। लो पूरा हो गया, तो ये आंसर। और ये आपने जाने अनजाने में क्वेश्चन सोल्व कर दिया, ये ऑलरेडी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन गुजरात बोर्ड में, यू कैन सी। सो पावर के साथ हमने डील किया, ये स्क्रीनशॉट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, मोस्ट आईएमपी। अब हमारे पास टोटल 5 वी कैन से दैट मैथमेटिकल प्रोसेसेस और 5 पॉइंट्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर। अब अपन लोग ये पांचों पांच का करेंगे मिक्स भजिया, यानी कि सबको मिक्स करके सॉल्व करने के क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको क्या याद रखना है? आपका फोकस होना चाहिए टाइप ऑफ मैथमेटिकल प्रोसेस। इफ यू आर डीलिंग विथ मैथमेटिकल प्रोसेस लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शन, then you have to think about only absolute error. But you are dealing with mathematical process like multiplication, like division and associated with power, then you have to think about relative or fractional error। दूसरी बात, अनिल कपूर को साथ में रखना है, नो एंट्री का मूवी, स्लोगन याद रखो, बी पॉजिटिव, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, और पावर हो, सब कुछ हो, एड करना है सब कुछ। ओके फ्रेंड्स, सो विल स्टार्ट विथ, वी कैन से दैट फ्यू क्वेश्चन। तो अपन लोग शुरू करते हैं। पहला जिसे कह सकते हैं कि मैं क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ ताकि आपको पता चले, फिर धीरे धीरे अपन लोग
इसमें आज मास्टरी लेने वाले हैं। जोरदार टॉपिक है, आज का पूरा लेक्चर परफेक्ट कर देने का है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, सो नाउ वी विल थिंक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। देखना, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं अपन लोग देखते हैं, इफ देयर इज अ एरर just a minute. ओके, तो आपको क्वेश्चन कैसे देंगे, देखो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले this is, you can see that this question is very IMP. It is already asked in NEET 2013. ओके, तो बी ग्रुप वाला जरा देखें। एक क्वेश्चन मैं सोल्व करवाता हूँ, एक आपको अभी इधर करना है, यानी आप जिसे कह सकते वीडियो पोस्ट करके सोल्व करोगे, और तीसरा क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में। तो आज ऐसे क्वेश्चन अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको देंगे P इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वेयर रूट सी इंटू डी। देखो, P एसोसिएटेड विथ 4 क्वांटिटीज 1 2 3 4 ए बी सी डी। ओके, और ऐसा क्वेश्चन दिया, इफ परसेंटेज एरर इन A, B, C and D are 1%, 3%, 2% and 4%. Then find percentage error in P. चलो ऐसा क्वेश्चन दिया है। So A में एरर कितना है? 1%. You can see that. What is the error in B? 3%. What is the error in C? 2%. What is the error in D? 4%. तो अगर ABCD का परसेंटेज एरर हो तो फाइंड द परसेंटेज एरर इन P। डोंट वरी, क्वेश्चन देख के कोई टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर का सबसे फेमस क्वेश्चन यही है। सो विल स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट द इक्वेशन। व्हाट इज द एरर इन P? इट इज डेल्टा P बाय P। क्यों फ्रैक्शनल एरर? क्योंकि इधर देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर है, इसलिए। स्टार्ट। सबसे पहले ए के ऊपर ध्यान, तो एक एक क्वांटिटी ए पावर है ए के ऊपर, यस पावर आ गया, मतलब ए फ्रैक्शनल एरर में लिखेंगे। व्हाट इज द पावर? 3 पावर आगे। व्हाट इज द एरर इन ए? इट इज डेल्टा ए बाय। अब आता है बी, मगर ए और बी के बीच में मल्टीप्लिकेशन, मगर हमने तो बोला अरे मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, सब्ट्रैक्शन हो, करना तो एक है, एडिशन। डोंट वरी, बी पॉजिटिव, अनिल कपूर। अब आ रहा है बी। व्हाट इज द पावर ऑफ बी? 2, तो 2 आगे। व्हाट इज द एरर इन बी? डेल्टा बी बाय बी प्लस। अब आया सी। अब सी का पावर देखो, ये लोगों ने थोड़ा आपको फंसाने के लिए रूट दिया है। इफ देयर इज अ रूट, so you know that very well, root c can be written like c raised to 1/2. So what is the power of c? 1/2. So 1/2 power आगे। and what is the error in c? It is delta c by c plus fourth quantity d. What is the power of d? 1, तो 1। and what is the error in d? It is delta d by d। अगर ये इक्वेशन आपने रॉन्ग लिखा, मतलब समझो आप गए काम से। मोस्ट टाइम पे अगेन you have to start with P. P का एरर डेल्टा P by P। A का एरर, A के ऊपर पावर है, जो पावर हो उसको आगे। A का एरर डेल्टा A by A, B के ऊपर पावर 2 डेल्टा B by B, C के ऊपर पावर 1/2 डेल्टा C by C, D के ऊपर पावर 1 डेल्टा D by D। एक का साइन प्लस प्लस प्लस, बिंदास, B पॉजिटिव। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल राइट 3। What do you mean by delta A by A? It is called fractional error in A। It is called fractional error in quantity A। तो कोई बोले सर इधर तो परसेंटेज एरर दी है, डोंट वरी, अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा? परसेंटेज। मतलब टेंशन मत रखो, ये डेल्टा ए बाय ए है, उसको अपन लोग डायरेक्टली 1% लिखेंगे, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव टू कंसीडर परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज ना लिखो और सिर्फ 1 लिखो तो लास्ट में परसेंटेज में कन्वर्ट करने का। पर टेंशन है, इधर ऑलरेडी परसेंटेज में दिया है तो सीधा परसेंटेज उठाओ प्लस। What is the percentage error in B? It is 3%. What is the percentage error in C? It is 2%. What is the percentage error in D? It is 4%.
ओके, सो 3 1 जा 3 3%, 2 3 जा 6%, अलविदा दोस्तों, सो 1%, and here 4%. So 3 plus 6 plus 1 plus 4 यानी 14 ना, so total answer होगा 14%. So what is the percentage error in quantity P? It is 14%. NEET 2013. Very easy. Analyze. Take your time and analyze. आज इसकी practice. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी थिंक अबाउट वन मोर. अब अपन लोग इसके जैसा एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको सोल्व करना है पहले, फिर मैं आपको जिसे कह सकते हैं इधर सोल्व कराऊंगा. मगर सोल्व करने का फंडा, वीडियो पॉज करो और अपने आप शुरू करो. सो नाउ वन मोर. तो मजा ऐसा पॉइंट है, डोंट वरी, जिसको लाइट हो गई उसको आजीवन उजाला है, डोंट फॉरगेट. सो इसमें जरा ध्यान रखने का है, बाकी कुछ नहीं. सो अपन लोग एक और डिस्कशन करते हैं. ओके, सो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड हियर. P is given in the form of equation a raised to 1/4 cube root of b c raised to 5/2 power and root d. देखो टेंशन है, आपको डराने के लिए ऐसा टिपिकल क्वेश्चन दिया है, डोंट वरी. If percentage error in capital A, capital B, C and capital D are, कितना दिया है? In percentage error 8%, 6%, 4% and 2%. What is the percentage error in A? 8%. Percentage error in B 6%. Percentage error in C 4%. Percentage error in D 2%. Then find percentage error in P. Pause this video. And now you have to start yourself, apply your logic. Answer चाहिए मुझे. Okay friends, so now we would like to solve this question. आपका आंसर जो आता है वो आपको लास्ट में चेक करना है कि वो सही है कि नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल P, so I will write delta P by P is equal to, start with A. What is the power of A? 1/4. So 1/4 power आए मतलब fractional error in A plus. What is the power of B? ये चिकना केस क्यूब रूट यानी 1/3 यानी 1/3 delta B by B plus. What is the power of C? 5/2. So 5/2 delta C by C plus. What is the power of D? D possess root. Root that means 1/2. So delta D by D. Okay friends, so 1/4. What is the percentage error in A? It is 8%. What is the percentage error in B? 6%. What is the percentage error in C? 4%. And what is the there is 5/2. What is the percentage error in D? It is 2%. So 8 2 ja 4, that means 2%. 3 2 ja 6, 2%. 2 2 ja 4, multiply by 5, 10%. अलविदा दोस्तों, so 1%. So 2 plus 2 plus 10, 15%. It is, you can see that percentage error in P. अगर आपका आंसर 15% है, perfect, no problem at all. You are right. Supreme, you can see that question you have solved. So friends, just check it. So very important question here, just in front of you. So ये देखो, अब इसके जैसा एक क्वेश्चन है, वो मैं लास्ट में होमवर्क में दूंगा, तो आपको ट्राई करनी है लास्ट रिलेटेड पॉइंट में. अब अपन लोग इसमें थोड़े क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा टिपिकल सिस्टम ऐड करते हैं. चलो, तो ऐसे क्वेश्चन आपको लास्ट में एक दो में देता हूँ, ट्राई करनी है आपको. तो एरर में मजा है, नो डाउट. इसमें आपके कंसेप्चुअल पॉइंट्स जोरदार होने चाहिए, और मैंने जो थीम दी वो पकड़ो, बस पूरा हो गया. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एब्सोल्यूट एरर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड पावर, यू नो दैट वेरी वेल. फ्रैक्शनल एरर. अब जो क्वेश्चन है वो जरा देखना, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ऐसा दिया है, इफ परसेंटेज एरर इन मास ऑफ स्फीयर is 0.26%.
and percentage error in radius of sphere is 0.38%, then question सुनना बराबर, then find percentage error in density of sphere. Find the percentage error in density of sphere. So here your target to find. तो पहले आपको मैं सोल्व करवाता हूँ, बाद में आप जिसे कह सकते हैं अपने आप ट्राई कर सकते हो. So we start with, we can say the density. First of all, whatever your target, write down the equation. So density of sphere. What is the formula of density? General formula of density. Density, that means mass of sphere upon volume of sphere. So what is the mass? It is m. Mass already given. But you can see volume is not directly given. Volume is not directly given. So volume, that means what is the volume of sphere? Volume of sphere 4 by 3 pi r cube. You know that. This is your density. So now we start with, we can say that error. So percentage error in density is equal to, start with m. So what is the percentage error in density? It is delta rho by rho. पहले रो से शुरू करेंगे, डेल्टा रो बाई रो. अब आता है मास इज इक्वल टू डेल्टा m बाई m. क्योंकि m का पावर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस. अब देखो इधर 4 by 3 पाई है. एरर में कांस्टेंट की कोई टेंशन लेने की नहीं. स्वाहा, तो ये कांस्टेंट हट गया, बचा क्या सिर्फ अब r क्यूब. तो व्हाट इज द पावर ऑफ r? 3. सो 3 डेल्टा r बाई r. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कांस्टेंट की, सिर्फ वेरिएबल के ऊपर फोकस करो. सो नाउ डेंसिटी और एरर इन डेंसिटी डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू, व्हाट इज द डेल्टा m बाय m? व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन मास? इट इज 0.26% प्लस मल्टीप्लाई बाय 3. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा r बाय r? फ्रैक्शनल एरर इन r, मगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, यानी परसेंटेज एरर इन रेडियस गिवन it is 0.38%. इसको सिंप्लीफाई करो, you will get answer 1.4%. So this is, you can see that answer in percentage error of density. Super. वापस देखो इधर वॉल्यूम के लिए ये धूम मचाएगा, और वॉल्यूम में जो कांस्टेंट है उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बाकी बचा क्या? रो अपॉन m r क्यूब. अब इसका तो आपको आता ही, अभी सिखाया, फटाफट लिख सकते हो. परसेंटेज एरर दिया है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल. चलो इसके जैसा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी सॉल्व करना है. सो यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ. सो थिंक अबाउट दिस वन. ओके, परसेंटेज एरर इन मास ऑफ, मैं इधर थोड़ा चेंज करके देता हूं. परसेंटेज एरर इन मास ऑफ क्यूब इज 0.26%. परसेंटेज एरर इन लेंथ ऑफ क्यूब इज 0.38%. देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन density of cube. Start. चलो दिस इज योर क्वेश्चन. ये आपका क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके शुरू करो फटाफट. व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन मास? 0.26%. बट फॉर क्यूब, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन लेंथ? 0.38%. देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी ऑफ क्यूब. स्टार्ट. ओके फ्रेंड्स, तो आपने वीडियो पॉज करके ट्राई की होगी. मैं इसको सोल्व करवाता हूं. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी ऑफ स्फीयर. स्फीयर की जगह इधर वर्ड आएगा क्यूब. सो डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, बट वॉल्यूम ऑफ क्यूब. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यू नो दैट वेरी वेल. इट इज सिंपली L क्यूब. यू नो दैट वेरी वेल, L क्यूब. तो अब इसका अपने को डेंसिटी का एरर फाइंड करना हो. सो डेल्टा रो बाय रो, डेल्टा m बाय m. L क्यूब का क्या हो जाएगा? डेल्टा L बाय L. इतना ही करेक्शन होगा. देखो और 3 आगे. सो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन मास? 0.26. व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन लेंथ? 0.38. यानी डिट्टो टू डिट्टो यही आंसर आएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो अगर आपका आंसर 1.4% आता है, सुपर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन सी. तो दोस्तों ये भी मस्त क्वेश्चन. तो अपन लोग अब ऐसे क्वेश्चन को एक कदम आगे बढ़ाते हैं. ओके, धीरे धीरे. अब जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ट्राई टू सॉल्व इट.
ओके, देखो फॉर्मूले पावर जितना हो सके उतना बेस्ट रखना है। तो नाउ वी वुड लाइक टू सॉल्व वन मोर। तो ये जो ट्यूसडे है कल, उसमें अपन लोग 100% एरर का टेस्ट लेने वाले हैं, यानी एरर परफेक्ट कर देने का है। बेस्ट 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व अबाउट एरर। सो प्रैक्टिस करते रहो, जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया हो देखो बराबर। Okay, now if percentage error in length of percentage error in length of simple pendulum, देखो what है pendulum, percentage error in length of pendulum is 100 plus or minus 0.1 meter। देखो not percentage error, only error। if error in length of pendulum is 100 plus or minus 0.1 meter and error in periodic time of pendulum is 2 plus or minus 0.01 second, 2 plus or minus 0.01 second। तो क्वेश्चन है पूछेंगे फाइंड परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। चलो, तो मैंने आपको ये बताया हुआ है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टाइम ऑफ पेंडुलम। तो जो लोगों को नहीं आता, डायमेंशनल एनालिसिस में हमने डिस्कस किया हुआ है। सो राइट हियर पीरियोडिक टाइम ऑफ पेंडुलम, it is given by equation 2 pi under root L by G। याद आया? ना याद आया वो टेंशन ना ले, अभी याद रख ले। देखो वापस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 2 पाई आया, और हम तो जानते हैं एरर में कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं, थूक दो इसको, फेंक दो इन शॉर्ट। तो अब बनेगा इक्वेशन ऐसा t is equal to under root L by G। अब अपने को इसका इक्वेशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ एरर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मगर एरर तो g में फाइंड करनी है, सो ऑब्वियसली g शुड बी रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। तो अपन लोग इसका स्क्वायर ले बाय स्क्वेयरिंग, सो इट इज L by G or not। So what is the final answer of g? G is equal to L upon t square। You can see L upon t square। अब इसको लिखते हैं डेल्टा g by g, इसका मतलब होगा एरर इन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। सो डेल्टा g by g इज इक्वल टू लेंथ है, सो डेल्टा L by L प्लस प्लस क्या लिखे, पावर कितना है 2, सो 2 डेल्टा t by t। ये इक्वेशन भी मोस्ट टाइम पे, मगर इसको रटे नहीं मानना है। मोस्ट टाइम पे का मतलब है इसका यूज फ्यूचर में बहुत बड़े पैमाने पर होना है। सो g का एरर डेल्टा g by g, L का पावर 1 है, सो डेल्टा L by L, t स्क्वायर, सो 2 डेल्टा t by t। व्हाट इज द डेल्टा? देखो अभी तक आपको ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल क्यों है, अभी तक आपको सीधा डेल्टा एल दे दिए थे 2%, तो सीधा 2 रखते थे, मगर ये लोग आपको थोड़ी मेहनत करवाएंगे, मजूरी करवाएंगे। क्यों? तो इधर डेल्टा एल और एल की वैल्यू दी है, देखो ये आपका प्योर वैल्यू है लेंथ, और ये डेल्टा एल एरर इन लेंथ, एरर इन लेंथ। इसी तरह ये पीरियडिक टाइम है, तो p ये जो 2 है इट इज कॉल्ड प्योर वैल्यू ऑफ पीरियडिक टाइम, and this 0.01 it is representing error in periodic time। तो ये मिल गया आपको डेल्टा t। अब अपन लोग इसमें वैल्यू रखे, सो डेल्टा g by g is equal to डेल्टा l by l। what is the value of delta l? delta l 0.1 upon l 100 plus 2, so 2। what is delta t by t? delta t 0.01 upon 2, so if you simplify, so delta g by g is equal to 1.1%। ये आपका आंसर आएगा, you can say। so not we can say that in this numerical value of delta l and delta t by t given directly, but in terms of l and delta l। तो ऐसे क्वेश्चन दे तो भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, आपको डेल्टा और l की वैल्यू फाइंड करके आगे बढ़ना है। तो दिस इज वेरी IMP न्यूमेरिकल, एनालाइज इट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ विल थिंक अबाउट वन मोर। अब जो क्वेश्चन है वो बहुत ही हटके है, तो बी अलर्ट, और मेरी आपको विनती है कि जरा इसको सोल्व करना है। एक क्वेश्चन मैं सोल्व करवाता हूँ, फिर इसके जैसा क्वेश्चन मैं आपको जिसे कह सकते हैं कि होमवर्क में देता हूँ। चलो
बराबर. सो बी अलर्ट. तो अब जो क्वेश्चन अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपर सेगमेंट, जो स्टूडेंट्स का दिमाग तेज तरह चल रहा है वो जरा सोचे, और जिसका नहीं चल रहा है वो जरा ज्यादा सोचे. मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, उसको जरा जोर लगाना है. सो बी अलर्ट. मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है वो ऑलरेडी जेईई नीट का पार्ट बन सकते हैं, डोंट फॉरगेट. तो फ्रेंड्स बी कंसंट्रेट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. चलो क्वेश्चन में देने जा रहा हूँ, जरा देखो. इफ, so we'll write here धूम, because this is, we can say that very interesting. ये धूम मचाने वाला है. If current passing through wire, if current passing through wire is given by equation 2.5 plus or minus 0.5 ampere. देखा करंट दे दिया. एंड पोटेंशियल यानी V, and potential V is equal to given 20 plus or minus 1 volt. Then find resistance of wire. Question बराबर पकड़ना. Then find resistance of wire. चलो पहले अपने आप सोचो, ट्राई करो, फिर शुरू करते हैं. Apply your logic, don't worry. Okay friends, so lots of time with you because of you know that very well, very important numericals, so I have decided that provide some much more time. Okay friends, फाइनल आंसर क्या आता है वो आप जरा देखते हैं. इधर जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर. कोई बोले इसमें क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट? यस, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, रेजिस्टेंस पूछा है. The question is very important. Here they ask the question about the resistance of wire instead of error in resistance. आप में से काफी लोगों ने एरर फाइंड की होगी. देखो ऐसा किया होगा. First of all, as per I can write Ohm's law. Resistance R is equal to V by I. So what is the error in resistance? It is delta R by R. Because डिवीजन है तो अपन लोग फ्रैक्शनल एरर में जाएंगे. डेल्टा V by I तो डेल्टा I by I, डेल्टा V by V प्लस डेल्टा I by I. रेडी? तो आप में से काफी स्टूडेंट्स ने वैल्यू फाइंड कर दी है. देखो क्या किया होगा. डेल्टा V, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा V? इफ यू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, सो दिस इज योर डेल्टा V1. व्हाट इज योर V? V already here, pure value 20. Plus what is your delta I? This is your delta I. So it is 0.5. And what is your I? This is your pure value of current, 2.5.
If you simplify this portion, so your answer here 0.2 and this is 0.05, 25 4 that's why. So this is your answer delta r by r, and what is it? It is, you can see that 0.25. तो आपका आंसर ये आता होगा, मगर ये लोचे, this is, you can see that not your answer. Your answer to find resistance, यानी आपको दिया है प्योर करंट, आपको दिया है प्योर पोटेंशियल, so your target to find pure, we can say that resistance. तो रेजिस्टेंस जिसे कह सकते हैं कि फाइंड करते हैं, तो अपन लोग देखो प्योर रेजिस्टेंस है R, R इज इक्वल V बाय I, मगर V प्योर है नो डाउट, मगर V में कुछ एरर है। अगर V में एरर हो, I में एरर हो, तो जाहिर सी बात है R में एरर होगी। तो आपको रेजिस्टेंस ऑफ वायर का मतलब ऐसा होगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर दैट मींस R प्लस और माइनस डेल्टा R। ये इस क्वेश्चन का मेन जिसे कह सकते हैं लॉजिक है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर मतलब नॉट ओनली R बट अलोंग विथ इट्स एरर, क्योंकि हमें R में एरर फाइंड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि R V और I के ऊपर डिपेंड है। अगर V में एरर हो, I में एरर हो, तो ऑब्वियसली R में एरर होगी। तो अपन लोग को R प्लस और माइनस डेल्टा R फाइंड करना है। तो सबसे पहले R तो मिल जाएगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट R, सो प्योर वैल्यू विदाउट एरर, सो इट इज V by I। व्हाट इज V? V already 20. What is I? It is 2.5. So if you simplify, then it is R is equal to 20 upon 2.5, that means 8 ohm. तो ये R मिल गया। So delta यहाँ से मिलेगा, you can see that. So delta R upon R, it is 0.25. So delta R, what is the value of R? Already we have found 8. So delta R becomes equal to 0.25 multiplied by 8. So delta R simply you can see that 2 ohm आ गया। अब अपना फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं। देखो रेजिस्टेंस ऑफ वायर R प्लस और माइनस डेल्टा R इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? R already 8 and what is the, we can say that delta R it is 2, so 8 plus or minus 2 ohm. This is the, you can see that answer of this question. Most IMP once again रेजिस्टेंस ऑफ वायर पूछा है तो खाली R नहीं फाइंड करना है, खाली डेल्टा R बाय R फाइंड नहीं करना है। रेजिस्टेंस का मतलब है विथ इट्स एरर, अलोंग विथ इट एरर। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस दो क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड है, V एंड I। V में भी एरर है, I में भी एरर है, तो R में भी एरर मिलेगी। तो रेजिस्टेंस, ऐसा मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि टोटल मास और एरर इन मास। एरर इन मास मतलब ओनली डेल्टा है, बट टोटल मास दैट मींस मास प्लस विथ इट्स एरर। तो इसमें भी ऐसा पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर दैट मींस रेजिस्टेंस के साथ उसका एरर भी। तो रेजिस्टेंस R और व्हाट इज द एरर इन रेजिस्टेंस? डेल्टा R। सो R कैन बी फाउंड बाय दिस इक्वेशन, एंड टू फाइंड एरर इन रेजिस्टेंस वी हैव अप्लाई कांसेप्ट ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। क्योंकि ये तो डिवीजन है तो हमने फ्रैक्शनल एरर लिया। डेल्टा V by V है, डेल्टा I by I है, डेल्टा R by R मिला। ऐसे क्वेश्चन में आपको R यहाँ से मिलेगा, R को इधर ले जाओ, आंसर आ गया। आज ऐसे क्वेश्चन है, मैं 1 से 2 देता हूँ। एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ जो आपको होमवर्क में करना है। मैं आपको 2 क्वेश्चन है वो होमवर्क में दे रहा हूँ। यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ एट योर होम, डोंट फॉरगेट, विदाउट एनी यू कैन सी दैट रेफरेंस बट योरसेल्फ। सो पहला क्वेश्चन देखो, इधर ही मैं दे रहा हूँ, करंट I एंड पोटेंशियल V। करंट I is equal to 5 plus or minus 0.5 ampere and potential 40 plus or minus 1 volt. Then find the resistance of wire. This is your question. ये क्वेश्चन JEE NEET रिलेटेड पूछा हुआ है, मोस्ट IMP। एक न्यूमेरिकल मैंने सोल्व करवाया, अब आपको पता चली जाएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ वायर का मतलब खाली रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस के साथ उसकी एरर भी। सो R प्लस और माइनस डेल्टा R, वर्डिंग को पकड़ो, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो फ्रेंड्स ये आपको होमवर्क में करना है। इसके जैसा एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में और दे रहा हूँ जो आपको इसके जैसे नहीं, एरर रिलेटेड, जो आपको भी करना है। अब आपके पास स्क्रीन के ऊपर ये न्यूमेरिकल होगा, इसलिए मैंने हटा दिया। ये सब कुछ एक नोटबुक बनाओ अच्छी तरह, ताकि क्या है कि ये रेफरेंस के तौर पे काम में आ सके। क्योंकि ये लेक्चर्स
है वो तो रहने वाले, मगर इम्पोर्टेंट चीज़ है एक बार लिखो। वंस अगेन वन मोस्ट टाइम की क्वेश्चन, चलो ये भी नीट रिलेटेड। इफ z इज इक्वल टू a क्यूब रूट b अपॉन c रेस टू 1/2 इंटू d रेस टू 1/4, रेडी। ऐसा एक क्वेश्चन दिया है, इफ परसेंटेज एरर इन a b c एंड d, इफ परसेंटेज एरर इन a b c d आर, ए में एरर है सिंपली 2%, एरर इन बी 4%, एरर इन सी simply I can say 6%, and error in D 8%, then find percentage error in Z। ये भी आपको आना ही चाहिए दोस्तों, आज हमने इसकी प्रैक्टिस बहुत की है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अब अपन लोग एक तो और टिपिकल क्वेश्चन में जाते हैं ताकि आपके कंसेप्ट और बने जबरदस्त लेवल पे। ओके फ्रेंड्स, सो बी अलर्ट। आंसर आपको याद रखना है, मैं आंसर लास्ट टाइम ही दूंगा, यानी कि अपने आप पहले कोशिश करो, उसके बाद अब अपन लोग जिसे कह सकते हैं एक दो क्वेश्चन में देता हूँ आपको, जिसे कह सकते हैं उसकी ट्राई करनी है। चलो, सो वंस अगेन वी स्टार्ट द नेक्स्ट वन। रेडी? सो मैं मस्त क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर JEE में आ सकते हैं जो आपको अभी इधर ही सोल्व करना है ताकि आपके फंडे बने। फ्रेंड्स, आज एरर का ये लेवल बहुत ही IMP मैक्सिमम क्वेश्चन यही डिपार्टमेंट में से आने के पूरे चांस है, सो बी अलर्ट। ओके, सो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन है द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम, distance covered by body in time t is equal to 50, there is mistake, sorry, 5 plus or minus 0.6 second। इतने टाइम में the distance traveled by body is, what is the distance? Distance d given, it is 40 plus or minus 0.4 मीटर। इतनी सेकंड में अगर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करे तो क्वेश्चन में देने जा रहा हूं, फाइंड करना, देखना क्वेश्चन, देखना मोस्ट टाइम पे, कैलकुलेट स्पीड ऑफ गिवन बॉडी, ये पहला क्वेश्चन। एंड द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड परसेंटेज एरर इन स्पीड एंड मोस्ट टाइम पे। तो दोस्तों पहले आप अपने आप ट्राई करो, आज हमने ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए हुए, जस्ट अप्लाई योर लॉजिक एंड ट्राई टू सॉल्व इट। तो आपने वीडियो पॉज करके ट्राई की होगी, तो मैं सोल्व करवाता हूँ। सबसे पहले देखो वर्डिंग, कैलकुलेट ऑफ स्पीड। स्पीड मतलब आप देखो, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ स्पीड? वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी अपॉन टाइम टेकन फॉर इट, d by t। अगर d प्योर नहीं है, d में एरर है, दिस इज एरर इन d। d प्योर नहीं है, देयर इज सम एरर इन टाइम, सो देयर इज एरर इन d, there is error in time, so one point is clear, there is error in speed। तो सबसे पहले आप जानते हो स्पीड ऑफ गिवन बॉडी होगा क्या? इट इज v प्लस और माइनस डेल्टा v। तो ये आपका पहला पॉइंट बनेगा। तो स्पीड ऑफ गिवन बॉडी इट इज v प्लस और माइनस डेल्टा v, मोस्ट IMP। सो v अपन लोग पहले फाइंड करेंगे, देन डेल्टा v। पहले डेल्टा v फाइंड करते हैं इसके ऊपर से, और v फाइंड करना हो तो v भी फाइंड कर सकते हो। कैसे? देखो, तो स्पीड v इज इक्वल टू, v का मतलब है प्योर वैल्यू, सो वी हैव टू कंसीडर प्योर वैल्यू ऑफ स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज द प्योर वैल्यू ऑफ डिस्टेंस? व्हाट इज द प्योर वैल्यू? 40। सो 40 अपॉन व्हाट इज द प्योर वैल्यू ऑफ टाइम? 5। सो 40 डिवाइड बाय 5 यानी 8 मीटर पर सेकंड। चलो, ये आपका जिसे कह सकते हैं स्पीड आ गया। अब अपने को फाइंड करना है योर नेक्स्ट टारगेट टू फाइंड, यू कैन सी दैट एरर परसेंटेज, मगर पहले तो अपने को डेल्टा v फाइंड करना है। सो डेल्टा v यहां से फाइंड करेंगे, एरर। सो डेल्टा v बाय v इज इक्वल टू डेल्टा d बाय d डेल्टा t बाय t। देखो रेजिस्टेंस वाला न्यूमेरिकल अभी करवाया है इसके जैसा। व्हाट इज योर डेल्टा d बाय d? डेल्टा d 0.4,
D40 plus delta T 0.6 T5. If you simplify, then delta V by V, what is the answer of it? It is already we can say that 0. इसका आंसर आएगा 0.01 और इसका होगा 0.6 डिवाइड बाई 5 में करता हूँ, ओके 0.12। और अब ये अपना डेल्टा वी, बट अपने को तो डेल्टा वी फाइंड करना है, सो 0.01 0.12 मल्टीप्लाई बाई वी इधर आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी? इट इज 8। ये रहा ना वी, दिस इज वैल्यू ऑफ वी 8, तो वी इधर मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, देखो। So its answer directly I can write 1.04. So this is error in speed. अब अपने लोग जानते हैं अपना पॉइंट v क्या है? What is value v? V already here 8 plus or minus delta v 1.04 मीटर पर सेकंड। तो आपका पहला बड़ा पार्ट, what is the speed of given body? It is 8 plus or minus 1.04। मगर पूछा है percentage error in speed, so percentage error कौन फाइंड करेगा? परसेंटेज एरर किस तरह फाइंड करना? चलो सोचो, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर अपन लोग जानते हैं डेल्टा वी बाय वी मल्टीप्लाई बाय 100। तो डेल्टा वी बाय वी, सो व्हाट इज डेल्टा वी? डेल्टा वी ऑलरेडी 1.04 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सिंपलीफाई करो, आंसर आएगा 13%। मोस्ट आईएमपी। तो ये क्वेश्चन हटके है, स्पेशल वी कैन से दैट जेईई नीट रिलेटेड। वंस अगेन वी विल सॉल्व इट। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में देखो सिंपल स्पीड पूछा है, एरर इन स्पीड नहीं पूछा है, सिंपल स्पीड ऑफ अ गिवन बॉडी एंड यू वुड लाइक टू फाइंड स्पीड। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। मगर स्पीड है वो डिस्टेंस और टाइम के ऊपर डिपेंड है, मगर डिस्टेंस और टाइम में एरर है, सो वी हैव टू राइट और वी हैव टू ऑब्टेन स्पीड विथ इट्स एरर। तो ये रहा देखो स्पीड विथ इट्स एरर। तो यही मैंने आपको सिखाया, जब भी टोटल स्पीड पूछे, टोटल टेम्परेचर, टोटल मास, तो बॉडी का ओरिजिनल मास प्लस और माइनस एरर इन मास, बॉडी का ओरिजिनल स्पीड प्लस और माइनस एरर इन स्पीड। तो v फाइंड करना हो, v का मतलब है प्योर वैल्यू, सो प्योर वैल्यू ऑफ स्पीड, दैट मींस द प्योर वैल्यू ऑफ डिस्टेंस अपॉन प्योर वैल्यू ऑफ टाइम। व्हाट इज द प्योर वैल्यू ऑफ डिस्टेंस? 40 and what is the pure value of time? 5. so 40 by 5 8 meter per second। always v को फाइंड करो, उसके बाद डेल्टा v फाइंड करने में v की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अपन लोग ये इक्वेशन देखो, डेल्टा v by v is equal to delta d by d plus delta t by t। what is delta d? it is given, delta t all values given and this is your delta v by v। और इसको v को धीरे से इससे धक्का मार तो v की वैल्यू 8 रखी यहाँ से, तो ये आपका मिल गया 1.04। मगर इसको अपन लोग ने इधर ऐड कर दिया है, तो ये आपका बन गया स्पीड। मगर इसमें पूछा है परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर का मतलब तो जानते हैं, फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई बाय 100। फ्रैक्शनल एरर है डेल्टा वी बाय वी, आप डायरेक्ट यहाँ से भी उठा सकते हो, नो प्रॉब्लम, और डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, you can see delta v by v multiplied by 100। so answer 13%। मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एनालाइज इट एंड ट्राई टू सॉल्व अगेन। ओके, तो अपन लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने बोला एरर है वो जैसी जैसी चीज ने बेहतरीन न्यूमेरिकल एरर में पढ़े हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन है वो जगह देखने का है। तो मैं अब जिसे कह सकते हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही आईएमपी है और ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो अभी जरा ध्यान रखना, ये पहला राउंड एरर का प्रैक्टिस सब सेशन चल रहा है, अभी इसमें दूसरा राउंड में थोड़े और टिपिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन लोग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो नाउ बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन। इफ फिजिकल क्वांटिटी p is given by equation, physical quantity p is given by equation a cube b raised to 1/2 c raised to -4 and d raised to 3/2, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी दिया है। इन शॉर्ट दिस फिजिकल क्वांटिटी p depends upon 4 quantities a b c and d। क्वेश्चन सुनना बराबर, मस्त क्वेश्चन है। which physical quantity among a b c d
which quantity among A, B, C, D brings in the maximum percentage error in P. No, this is your question. Question mark रख देता हूँ. Which quantity brings in maximum percentage error in P? Check it. Which quantity brings in the maximum percentage error in P? P में maximum error जो है वो प्रोड्यूस करने में चारों क्वांटिटीज में से कौन सी क्वांटिटी का रोल मैक्सिमम होगा? चलो सोचो. Which quantity provides maximum error in physical quantity P? This is your question. जाहिर सी बात है दोस्तों, आपको इसमें ये क्वेश्चन चिकना कैसे, ये IMP JEE नीट के लिए काफी स्टूडेंट आंसर देंगे ए, क्योंकि ए का पावर 3 है, बी का पावर 1/2 है जो 3 से कम है, सी का पावर माइनस है वो तो नेगेटिव है, डी का पावर 3/2 वो भी 3 से कम है. तो काफी स्टूडेंट्स को लगेगा कि चारों क्वांटिटीज में ए जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका पावर मैक्सिमम है, तो पावर ए का मैक्सिमम है तो एरर बी पी में मैक्सिमम यही प्रोड्यूस करेगा. सॉरी, मैंने कितनी बार बोला कि एरर के साथ डील करो, तब अनिल कपूर को याद रखो. इसमें कोई माइनस साइन माइनस साइन देखने की नहीं. अब देखो तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का पावर जबरदस्त? ऑब्वियसली सी. यू कैन सी इट इज मैक्सिमम पावर. सो ऑब्वियसली व्हाट इज द आंसर? द सी क्वांटिटी brings maximum error in P. This is your answer. बहुत ही छलावा चिकना केस, but very IMP question. So analyze it and then we'll move towards the next point. Okay, अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्पेशली आपके लिए. सो जरा ट्राई करने की है. बराबर मैंने बोला था जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो जरा देखना. तो ये सब वेराइटीज अपन लोग ने कवर की है मैक्सिमम, फिर भी आपको फिर बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर थ्रू करेंगे अपन लोग. तो ये क्वेश्चन देखो, मोस्ट टाइम की फॉर JEE नीट. इसको भी वीडियो पॉज करके सोल्व करो, फिर मैं सोल्व करवाता हूँ. इफ देयर इज अ पॉजिटिव एरर ऑफ 50%, पॉजिटिव एरर ऑफ 50% in measurement of velocity of body. What is the positive error? Sorry, what is the positive error in measurement of velocity of body? It is 50%. Then find, what is the question? Find the error in measurement of kinetic energy of body. Superb question, जबरदस्त. सोचो चलो, पॉजिटिव एरर of 50% in measurement of velocity of body, then find the error in measurement of kinetic energy of body. ये क्वेश्चन चिकना, बहुत ही IMP. So apply your logic, pause the video and tell me the answer. ओके फ्रेंड्स, तो अपन लोग सोल्व करते हैं. सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी? इट इज K इज इक्वल टू 1/2 mv². 1/2 को तो गोली मारो. तो चलो इसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं. सो डेल्टा K बाई K इज इक्वल टू, पहले आएगा डेल्टा M बाई M प्लस 2 डेल्टा V बाई V. चेक इट. ये तो आप अब जानते हैं ना, भली भांति मास A और मल्टीप्लिकेशन है पावर, इसलिए फ्रैक्शनल एरर आएगा. अब कोई बोले सर ये डेटा ही गलत है. कोई बोले कैसे? आपने वेलोसिटी का एरर दे दिया, आपने जरा भी जिसे कह सकते हैं कि मास के बारे में नहीं बताया, इसीलिए केस चिकना है. जनरली कोई भी बॉडी मोशन करे तो आप जानते हो उसका मास कांस्टेंट रहता है. तो जैसे 1/2 कांस्टेंट था, ऐसे मास भी कांस्टेंट हो, क्योंकि व्हाट इज द चेंज इन मास? इट इज 0. कीप इन माइंड, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. अगर आपको मास का चेंज दे तो अप्लाई करना है. ऐसे क्वेश्चन में उसने मास के बारे में नहीं बताया,
दैट मीन्स मास रिमेन्स कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म को भी अपन लोग कंसीडर ना करें, सो डेल्टा के बाय के मल्टीप्लाई बाय 2, व्हाट इज डेल्टा वी बाय वी? डेल्टा वी बाय वी 50%, so what is your answer? 100%. so change in kinetic energy or percentage error in measurement of kinetic energy 100%. सुपर, ये न्यूमेरिकल जरा खास याद रखना, इसमें लॉजिक काफी लोगों ने बहुत ही अपर लेवल का अप्लाई किया होगा, मगर है जिसे कह सकते बेसिक नॉलेज. सुपर फ्रेंड्स, यू कैन सी. सो most of questions or IMP questions we have covered in this lecture of 13 number part, and I have also provided some question in the form of homework. You have to solve it, and in next lecture we will confirm the answer of this question. तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस बेहतरीन थे. मोस्ट आईएमपी एरर के 3 लेक्चर्स आपने देखे, 11, 12, 13, तीनों धांसू है. अच्छी तरह प्रिपेयर करो, इसमें से JEE नीट के चांस बनते हैं. नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा वो फाइनल लेक्चर होगा एरर का, जिसमें अपन लोग टिपिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे, थोड़े हटके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एंड देन वी विल थिंक अबाउट द नेक्स्ट लेवल. थैंक यू एंड बी अलर्ट एंड बी सेफ.